See, so we will be starting from question number 17 first, example number 17, and this is very very important sir. So एक बार ध्यान से सबको रीड करना क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का नंबर 17 और मैंने जो भेजा है. Show that semi-vertical angle of a cone of maximum volume and of given slant height is cos inverse 1 by root 3. So what is the first part which is given to you? This is example number 17. This is example 17. So can you tell me what is the first part which is given in? बताओ तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? Given slant height. Slant height is given slant height, मतलब यहाँ पे slant height हम लोग को दिया हुआ है. Slant height of cone is given. This is the first part. Second part, अगर slant height cone का slant height अगर मान लो दिया हुआ है तो find the maximum volume of the cone. मतलब volume of cone is maximum. Volume of cone is maximum is the second part. और तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट हम लोग को शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो cos इनवर्स 1 by root 3 है. We have to prove that semi vertical angle is cos inverse 1 by root 3. ये हम लोग को शो करना है. तीसरा पार्ट cos inverse 1 by root 3. So let us draw a cone whose slant height is already given to us. इस समय हम लोग को slant height already दिया हुआ है. So let us assume that the slant height of the cone is k unit. उसके बाद इसका हाइट को हम लोग h यूनिट और रेडियस को r यूनिट ले लेते हैं. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. Slant height of a cone is given. So what is the given slant height of the cone? Let it be k unit. Let k unit be the given slant height of the cone. और ये कोन जो है क्या चीज पे डिपेंडेंट है? देखो कोन का अगर हम स्लैंट हाइट को देखो ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, हाइट को बढ़ा दे, रेडियस को घटा दे, हाइट घटा दे, रेडियस बढ़ा दे तो भी स्लैंट हाइट उतना होगा. हाइट को और घटा दे, रेडियस को और बढ़ा दे तो भी स्लैंट हाइट उतना ही रहेगा. तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि what is slant height of a cone is given. With given slant height, what is the height and radius of the cone such that the volume of the cone is maximum? ये हमको जानना है. क्लियर? मतलब इस क्वेश्चन में स्लैंट हाइट गिवन है, कांस्टेंट है और वॉल्यूम हमको मैक्सिमम निकालना है कि किस h और r पे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, हमको ये जानना है. सो आल्सो h यूनिट एंड r यूनिट बी द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन. कोन का हाइट और रेडियस को मैंने h यूनिट और r यूनिट से डिनोट किया है. अब बताओ तुम लोग एक बार k, h और r ये तीनों चीज कैसे इंटर रिलेटेड है? बताओ तो कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं? बताओ तो k को, h को और r को कैसे रिलेट कर सकते हैं? इट इज वेरी मच क्लियर कि ये 90 डिग्री है तो इसकी ऑपोजिट वाला जो साइड होगा ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा. सो वी नो दैट hypotenuse square, that is k square, is equals to h square plus r square. Mark it as equation number 1. Now we move on to the next step, that is number 2. Step number 2. In step number 2, volume of cone is maximum. So let V be the volume of the cone. Now we are in second part. पहला पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? पहला पार्ट में हम लोग रिलेट करते हैं कांस्टेंट को वेरिएबल से रिलेट करते हैं. कांस्टेंट k है बिकॉज यहां पे लिखा हुआ है इस सम में दैट k and slant height is given. So slant height is given means I have assumed that given slant height is k unit. What is the height and radius? I am denoting it with h and r unit. I have related by using Pythagoras theorem. And now I have moved to second step.
Let V be the volume of the cone. Now what is volume of cone? I have given you the formula. It is 1/3 pi r square h. Formula is 1/3 pi r square h. Now the problem is we have got two variables that is h and r. So let us replace one of the variable and express it in terms of the other variable. So दो variable है, मैं यहाँ पे r square को replace कर रहा हूँ. What is the value of r square? It is k square minus h square. And write down from equation number 1. Let us multiply this with both the terms. So we have 1/3 pi into k square into h minus 1/3 pi into h cube. Now let us start the process of maxima and minima. So what is the first step of maxima and minima? So let us differentiate v with respect to k, with respect to h. If I differentiate v with respect to h, I will get dv by dh. So I want everyone to complete step number 2. Step number 2 तुम लोग खुद से एक बार कंप्लीट करो, फिर मैं आगे देखूंगा क्या करना. ठीक है? स्टेप नंबर 2 एक बार सबको कंप्लीट कर दो जल्दी से. So we find that first of all we will get dv by dh equals to 1 pi by 3 into k square minus 3 pi h square. You get dv by dh, इतना आ गया dv by dh. इसके बाद इसको 0 से इक्वलाइज करो. dv by dh को 0 से इक्वलाइज करके let us calculate, determine what is the value of h. So we have pi h square equals to pi by 3 k square. Pi gets cancelled. So h equals to k by root 3. This is the critical point. After determining and getting the critical point, now what we have to do is we have to find out second order derivative. So इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 pi h. अब हम लोग क्या करेंगे, -2 pi h में I mean ये जो रिजल्ट है इसमें हम लोग h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. If I substitute the value of h equals to k by root 3, you are finding that ये नेगेटिव है और यहाँ पे अगर हम k by root 3 पुट करें तो ये पूरा रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. नेगेटिव मतलब less than 0. Therefore v is maximum at h equals to k by root 3. So we have completed second part complete हो गया. अब थर्ड पार्ट हम लोग देखते कैसे होगा. थर्ड पार्ट निकालने के लिए एक बार ध्यान से नोट करना. Now what is the meaning of semi vertical angle? See, this is the vertical angle. इसका आधा मतलब पूरा का आधा जो है, अगर मान लो ये वर्टिकल एंगल अगर सपोज 60 डिग्री है तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा बताओ तो 30 डिग्री हो जाएगा. तो मतलब ये टोटल ये पूरा एंगल को वर्टिकल एंगल बोलते हैं, उसके आधा को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी वर्टिकल एंगल. और हम लोग को क्या शो करना है, सेमी वर्टिकल एंगल इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 by root 3. How to show this? Let semi vertical angle be alpha. Let alpha be the semi vertical angle. ठीक है, हम लोग ने सेमी वर्टिकल एंगल को क्या चीज से डिनोट किया, अल्फा से डिनोट किया. अब ध्यान से एक बार एक चीज नोट करना तुम लोग. अगर मान लो इस एंगल को मैंने अल्फा लिया है तो बताओ तो एक बार tan अल्फा क्या होगा, cos अल्फा क्या होगा और sin अल्फा क्या होगा. अगर हम tan अल्फा देखें तो अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला साइड. 90 के जो ऑपोजिट वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है. 90 के जो ऑपोजिट वाला साइड होता है that is hypotenuse and that is fixed every time. I mean this is termed as hypotenuse. ये एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस. tan क्या होता है, p by b that is r by h. cos क्या होता है, बेस by hypotenuse that is h by k. और sin क्या होता है, p by h that is r by k. इस पर्टिकुलर सम में हम लोग को रिलेशनशिप मतलब जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो किसके टर्म्स में निकालना है, cos इनवर्स, sin इनवर्स या tan इनवर्स, cos इनवर्स के टर्म्स में. इसका मतलब हम लोग को ये यूज करना पड़ेगा, इसको, ये वाले पार्ट को, इसको यूज करना पड़ेगा. अब एक बार देखना, cos अल्फा यहाँ पे h by k है. ठीक है, यहाँ पे k क्या है बताओ तो कांस्टेंट, h क्या है, वेरिएबल.
h का वैल्यू क्या है k/√3. So we know that cos alpha is the ratio of h by k. What is the value of h? The value of h is k/√3. k gets cancelled, we are getting 1/√3. तो अगर cos alpha 1/√3 है तो फिर अल्फा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3. देखो प्रूफ हो गया सेमी वर्टिकल एंगल. लेकिन अगर मान लो ये सेमी वर्टिकल एंगल, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक जगह चेंजेस आ जाएगा. बताओ तो क्या? शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स समथिंग. तो फिर हम क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे. ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोग को? r का वैल्यू और h का वैल्यू निकालना है. h का वैल्यू तो ऑलरेडी निकला है. हम h का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ r एंड आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r इन h हियर. तो हम लोग को आंसर क्या में मिल जाएगा? tan इनवर्स के टर्म्स. अगर मान लो मुझे sin इनवर्स में आंसर चाहिए तो इसको यूज करेंगे. बट इसके लिए यहाँ पे हमको सेम h का वैल्यू को यहाँ पे पुट करके r का वैल्यू निकालना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? बट यहाँ पे क्योंकि सिर्फ cos इनवर्स में प्रूव करना है तो यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं. ओके, और लास्ट में लिख देना है. I hope it is clear everyone. Yes, everyone read question number 18 now. Okay, 18 number 7. क्वेश्चन नंबर 18 में एक बार पहले क्वेश्चन को रीड करके पहले 3 सेक्शंस में डिवाइड करो. पहले डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 3 सेक्शंस. द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज गिवन. सेकंड पार्ट इज किस फंक्शन का हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है. और थर्ड पार्ट प्रूव या फाइंड. तो बताओ तो इसमें पहला पार्ट क्या दिया हुआ है? बताओ तो गिवन क्या है? बताओ तो व्हाट इज गिवन हियर इन दिस एग्जांपल नंबर 18 है. आगे से डिवाइड करें. पहला पार्ट होगा सरफेस एरिया इज गिवन. And surface area means total surface area. Second part में हम लोग को बोला जा रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम. ओके, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम. ये सेकंड पार्ट है. तीसरा पार्ट हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है. तीसरा पार्ट हम लोग को प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो sin इनवर्स 1/√3. sin इनवर्स 1/3. क्लियर? अब देखना एक बार ध्यान से. सरफेस एरिया इज गिवन, मतलब एक कोन है उसका सरफेस एरिया गिवन है. सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया. इस बात को ध्यान से नोट करना. ना ये कोन में जो है ये ऐसा तो नहीं कि हॉलो कोन है, कुछ नहीं दिया, मतलब सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया. तो यहाँ पे हमको सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा? लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया और नीचे का जो बॉटम सरफेस है वो दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा. लेकिन सबसे पहला चीज, लेट k स्क्वायर लिमिट बी द गिवन सरफेस एरिया एरिया ऑफ द कोन. कोन का गिवन सरफेस एरिया को मैंने यहां पे k स्क्वायर यूनिट से डिनोट किया है. ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ तो. फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. होता है ना? कर्व टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज बॉटम सरफेस एरिया. तो कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है. ठीक है, और दूसरा चीज है, तो हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे L दैट इज स्लैंट हाइट और यहाँ पे R को लेट ले लेते हैं. ऑल्सो L यूनिट एंड R यूनिट be the slant height and radius of the cone. कोन का स्लैंट हाइट और सरफेस और जो रेडियस है उसको मैंने L यूनिट है, R यूनिट ले लिया रेस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे मैं रिलेट करने वाला हूँ सरफेस एरिया जो कि गिवन है, सरफेस एरिया जो कि गिवन है दैट इज कांस्टेंट, उसको मैं रिलेट करने जा रहा हूँ वेरिएबल के साथ. तो कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? ध्यान देना. वी नो दैट पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर
is equals to how much? It is equals to k. Mark it as equation number 1. अच्छा बताओ, सबसे पहले पहला वाला लाइन समझ में आया तो सबको को? बहुत सीधा सा बात, सीधा है, सीधा इसीलिए बिकॉज स्लैंट हाइट सॉरी सरफेस एरिया गिवन है, तो वो गिवन वैल्यू क्या है, दिया नहीं है, के ले लिया। सरफेस एरिया क्या चीज पे डिपेंडेंट है? रेडियस पे और स्लैंट हाइट पे, दिख रही है। तो मैंने उसको आर और एल ले लिया, नेट डिराइव कर दिया रिलेशनशिप, पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, सो लेट V with the volume, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच में मैंने यहां पे स्टॉप किया, क्यों बताओ तो? एच को मैंने सर्कल क्यों किया? बिकॉज इस सब में मैंने एच बोल के कुछ भी चीज डिफाइन ही नहीं की है। इस सब में मैंने एच बोल के कोई चीज डिफाइन ही नहीं की है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एच को मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ एल एंड आर। So tell me what is the value of h in terms of L and R? We know that L square is equals to h square plus R square. Make sure that we cannot take 3 variables. हम लोग के पास 2 वेरिएबल लेने का ऑप्शन है और ज्यादा 2 कांस्टेंट। समझ में आया? तो 3 वेरिएबल मत लेना। तो यहाँ पे जो है हम अगर तीसरा वेरिएबल भी ले लें तो यहाँ पे h एक वेरिएबल हो जाएगा, L एक वेरिएबल हो जाएगा, R तीसरा वेरिएबल हो जाएगा। हम यहाँ पे h नहीं लेंगे, हम यहाँ पे h को लिखेंगे in terms of L and R. So what is the value of h? Height is square root of L square minus R square. Height is, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। याद होगा मैंने बताया था कि जहां जहां स्क्वायर रूट वाला सम हो वो सम को हम लोग आसान बना सकते हैं। हाउ? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एलिमिनेटिंग द स्क्वायर रूट। क्लियर? लिख देना तुम लोग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। उसके बाद v स्क्वायर को z ले लेना और इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। यहां लिख देना लेट z इक्वल टू v स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब बताओ मुझे क्या रिप्लेस करना बेटर होगा, r को या l को? बताओ तो एक बार यहां से। यस, क्या बेटर होगा रिप्लेस करना, r का वैल्यू या l का वैल्यू? L का वैल्यू। बिकॉज r का वैल्यू निकालना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी r है, यहाँ भी यहाँ r स्क्वायर है। r नहीं है, या r स्क्वायर नहीं है, जो कॉमन लेके निकाल देंगे और r स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे। सो इट इज बेटर वी पुट द वैल्यू ऑफ l। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? द वैल्यू ऑफ l इज k minus pi r square divided by pi r का होल स्क्वायर। देखो ये सब स्टेप्स भी बहुत क्रूशियल है, बिफोर मैक्सिमम मिनिमम। ये सब स्टेप्स में बहुत लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि आगे सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमको यहाँ पे कोशिश करना चाहिए कि जितना इसको सिंपल रखा जाए, जितना इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल रखा जाए, वो ज्यादा बेटर होगा। अभी हम देखो बहुत लोग क्या करेगा इसके बाद, मतलब कुछ इसको करेगा नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, बहुत बड़ा गलती करेंगे। बिकॉज इसके बाद डिफरेंशिएशन चालू करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सब। यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ है, अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो कैंसिल होकर रिड्यूस हो जाए। तो पहले हम रिडक्शन पे जाएंगे, पहले हम सिंप्लीफिकेशन पे जाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम का प्रोसेस। तो वो r to the power 4 होगा। So we have pi square divided by 9 into r to the power 4. Let us apply a minus b whole square का फॉर्मूला, और नीचे पाई आर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। a minus b whole square is a square, that is k square plus b square, that is pi square r to the power 4. Are you understanding? pi r square का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, pi square r square का होल स्क्वायर r to the power 4. So a square plus b square minus 2ab divided by
pi square r square, okay, plus, sorry, minus pi square by 9 r to the power 6. पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r का यहाँ पे दो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9, समझ में आया? तो पाई स्क्वायर कैंसिल, r का दो फैक्टर कैंसिल, डिनोमिनेटर में नहीं, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया r स्क्वायर k स्क्वायर पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 2 पाई k r टू द पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर r टू द पावर 6. नाउ सी पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 गेट्स कैंसिल, देखो ये, तो क्या बच जाएगा, z इक्वल टू k स्क्वायर कांस्टेंट इनटू r स्क्वायर माइनस 2 पाई k कांस्टेंट इनटू r टू द पावर 4 होल थिंग डिवाइडेड बाय 9, ये बच गया, ठीक है, इतना बच गया एक्सप्रेशन. अब इसको आराम से डिफरेंशिएट करके और सॉल्व करो तो, ठीक है. अगर देखो तुम लोग, अगर ये स्टार्टिंग में इस फॉर्म में तुम लोग अगर डिफरेंशिएट किया रहता या इसको सिंप्लीफाई नहीं करता तो सब बहुत लंबा हो जाता. अब देखो, अब स्टार्ट करो, डिफरेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू r इज अ वेरिएबल, फाइंड dz by dr, इक्वलाइज dz by dr विद 0 टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ r. करो तो मैं वेट कर. सो मैं कंप्लीट कर रहा हूं ये सम को, एक बार देखो. So the first is dz by dr. k स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर रखना, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r माइनस 2 पाई k कांस्टेंट है बाहर, r टू द पावर 4 का 4r टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 9. उसके बाद dz by dr को 0 से इक्वलाइज करो, so we have 2k square r minus 8 pi k r cube equals to 0, because क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, 9 into 0 is 0. Let us take common from both these terms. What is common? 2 is common, then we have k common, and then we have r common. What is left? It is k minus 4 r square. All right, check once again. Either तो पाई भी होगा 4 pi r square. So either 2k r equals to 0 or k minus 4 pi r square equals to 0. यहां से r का वैल्यू 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज रेडियस 0 हो ही नहीं सकता. यहां से r स्क्वायर हो जाएगा k by 4 pi, so r will become root k by 2 root pi. Now let us determine second order derivative of dz by dr. तब वो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगा ना, फर्स्ट लेफ्ट साइड को. कैसे? सो ऊपर dz by dr, k स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, 2 pi से कांस्टेंट. उसके बाद अब r मिल गया. अब हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज d स्क्वायर z by dr स्क्वायर. व्हाट इज d स्क्वायर z by dr स्क्वायर? इट इज 2k स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. व्हाट इज ddr ऑफ r? इट इज 1 minus 2 into 4 becomes 8 pi k कांस्टेंट है बाहर आएगा, r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9. अब यहां पे हम लोग r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. द वैल्यू ऑफ r इज रूट k डिवाइडेड बाय 2 रूट pi. See here I'm not able to identify that the result is less than 0 or more than 0. Means I have to substitute and check. I have to substitute and solve, and then only I'll be able to find out whether it is negative or positive. 2
2k स्क्वायर जैसे है वैसे रह जाएगा। r के जगह पे वैल्यू जब पुट करेंगे हम लोग तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ तो? इसका स्क्वायर हो जाएगा k बाई 4 पाई, तो 3 8 जा 24 पाई k इंटू r स्क्वायर हो जाएगा k बाई 4 पाई। Four 6 जा 24, pi gets cancelled, so we have 2k square minus 4 6 जा 24, pi gets cancelled, so we have 6k square divided by 9. What is 2k square minus 6k square? It is minus 4k square. We are finding that this result is what? Less than 0. As it is negative, so it is less than 0. Therefore, z is maximum at r equals to root k by 2 root pi. z जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है तो क्या होगा? v भी उसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, सो v is also maximum at r equals to root k by 2 root pi. ओके, तो हम लोगों ने सेकेंड पार्ट प्रूव कर लिया। फटाफट यहां तक पहले कॉपी करो। Now everyone see the last part. You have to show that semi-vertical angle. This is semi-vertical angle. Let it be alpha. Let alpha be the semi-vertical angle. Semi-vertical angle. Now, what is semi-vertical angle of a? I mean, if I am denoting semi-vertical angle with alpha. Now, यहाँ पे हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको आंसर किसके टर्म्स में चाहिए। हम लोग को आंसर चाहिए साइन इनवर्स के टर्म्स में। So we know that sin alpha. Now tell me, अगर मान लो मैं इसको अल्फा लिया, सपोज ये अल्फा है, ये 90 है, तो इसके ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब रेडियस परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज एल हो गया। तो यहाँ पे अगर हमको साइन के टर्म्स में प्रूव करना है, साइन इनवर्स के टर्म्स में, तो हमको साइन अल्फा यूज करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज साइन अल्फा? इट इज द रेशियो ऑफ perpendicular by hypotenuse, that is r divided by l. Now we know what is the value of r. It is root k divided by 2 root pi. Now do we know what is the value of l? No, we don't know what is the value of l. So we should have first of all calculated the value of l. तो बताओ तो तुम लोग एक बार l का वैल्यू क्या होगा? अगर हम r का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो l का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ तो? 3k. Yes, 3k. 3k divided by. No, I think it is wrong. सर आगे आंसर। Yes. हाँ क्या सर। फिर से बताना? 3k divided by 2 root pi k. ऐसे? हाँ k पाई k रूट में नहीं है क्या? अच्छा नहीं। हाँ, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, मतलब तुमने सिंपलीफाई नहीं किया। ओके, ठीक है, एक ही बात। Now see, determine the value of l. Determine the value of l. So the value of l is how much? बताना फिर से केज पेपर। 3k divided by 2 root pi k. under root pi k. pi k. Now यहाँ पे हम लोग 3k by 2 pi k को हम लोग root pi into root k लिख सकते हैं। We can write k as root k into root k. रूट के कैंसिल हो गए तो बच जाएगा 3 रूट के डिवाइडेड बाय 2 रूट पाई। सो पुट द वैल्यू ऑफ l व्हिच इज 3 रूट के डिवाइडेड बाय 2 रूट पाई। वी विल फाइंड दैट रूट के बाय रूट पाई गेट्स कैंसिल, सो व्हाट इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग? 1/3. सो कैन आई से दैट अल्फा इज साइन इनवर्स 1/3? ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट बिफोर प्रूविंग साइन इनवर्स 1/3 पहले ये चेक कर लो कि साइन इनवर्स के टर्म्स में लाना है आंसर, मतलब साइन अल्फा को यूज करना है। साइन अल्फा मतलब p/h। r और l दोनों का वैल्यू चाहिए हमको। r का वैल्यू तो हम लोग को पता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ l बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r हियर। ओके, उसके बाद हम लोग ये स्टेप्स लेंगे। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज नंबर 8। आफ्टर दिस एवरीवन सी एग्जांपल नंबर 19। दिस इज इजी क्वेश्चन, मतलब ज्यादा ये टफ तो है नहीं इसमें।
देखना एक बार मैं फिर भी समझा देता हूँ, ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 19, okay, from RS Agrawal. Everyone note down. Read the question first and divide into 3 sections. पहले क्वेश्चन रीड करके 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। Now सबसे पहला पार्ट, given volume. This is example number 19. Volume is given. Volume of a cuboid. Volume of a cuboid is given. आप जो 3 सम भेजे उसका थर्ड सम नहीं करना है। So this sum I'll explain later on example number 19. Now let me do exercise number 25, which is the third question of today's class. Okay, and this sum is very important. Everyone note down. The third question of today's class is very important, and this is the last sum you can say. This is the last question of maximum minima you can say. This is the last topic. इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है, ठीक है? तो ध्यान देना एक नंबर 25. A right circular cylinder, and यही सब में एक एक्स्ट्रा मतलब एक नया कंसेप्ट लगेगा. बाकी सब में पाइथागोरस थ्योरम ही यूज हुआ, लेकिन यही एक सम है जिसमें नया कंसेप्ट लगेगा, देखना अप्लाई करना होगा. सो एक बार ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज का. A right circular cylinder is inscribed in a cone. Can you tell me which is constant? Cone is a fixed or cylinder is fixed? Tell me. Cone is fixed. Cone is fixed because we are inscribing a cylinder in a cone. Okay, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. We are doing from RS Agrawal exercise का number 25. Please note down. This sum is very important. So what is the first part? Cone is constant. Because we are inscribing a cylinder in a cone, so cone is constant here. Next, second part, जो हम cone cylinder inscribe कर रहे हैं, कैसा cylinder inscribe करना है? हम तो एक cone के अंदर बहुत सारा cylinder हम सोच सकते हैं. देखो, एक cone के अंदर we can think of several cylinders inside a cone. हमारे दिमाग में बहुत सारा cylinder चल रहा है, लेकिन कौन सा cylinder inscribe करना है? इस कोन के अंदर हम जो सिलेंडर इंस्क्राइब करने जा रहे हैं, कौन सा सिलेंडर? वो सिलेंडर जिसका कर्व सरफेस एरिया क्या है? मैक्सिमम है. सो सेकंड पॉइंट, CSA ऑफ अ सिलेंडर व्हिच इज टू बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन is maximum. Curved surface area of a cylinder is maximum, is the second part. And third part, we have to show that diameter of the cylinder is equal to the radius of the base of the cone. Third part is we have to prove that diameter of cylinder is equals to radius of the base of the cone. Radius of the base of the cone. ये हम लोग को लास्ट में प्रूव करना है. तो मैं एक बार यहाँ पे एक और फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ. देखना एक बार, ये कोन है, तो इस कोन के अंदर हमारे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है ना. ये वाला सिलेंडर, चलो नहीं, और हाइट बढ़ा देते हैं, रेडियस घटाए थे, और हाइट बढ़ा देते, रेडियस घटाए थे. तो मतलब मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है ना, लेकिन हमको इनमें से कौन सा सिलेंडर लेना है? इनमें से वो सिलेंडर लेना है. Out of all these n number of cylinders which can be inscribed in a cone, I need to select that cylinder whose curved surface area is maximum of all. जितने भी हम सिलेंडर इसके अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं, उन सब में से जो हमको सिलेंडर चाहिए उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. क्लियर? अब यहाँ पे हमको रिलेट करना है कांस्टेंट को और वेरिएबल को. यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? इसमें कोन का कितना सारा चीज होता है, बताओ तो. कोन क्या क्या चीज पर डिपेंड होते हैं? हम ऐसे बोल सकते हैं, कोन स्लैंट हाइट पे डिपेंड करता है. कोन का कोई भी सिलेंडर कोन का कोई भी अगर वॉल्यूम ले लो या कर्व सरफेस एरिया ले लो, स्लैंट हाइट पे डिपेंड करता है. स्लैंट हाइट पे, सेमी वर्टिकल एंगल पे,
हाइट पे और रेडियस पे। अब ये चार चीज में से कौन कांस्टेंट है, तो कौन को कांस्टेंट रखने के लिए कोई भी दो चीज लेट लेना पड़ेगा, कोई भी दो चीज, एक चीज से नहीं होगा। तुम या तो हाइट और रेडियस फिक्स कर लो, तो फिर कौन बदलेगा नहीं, कैसे बदलेगा बताओ। तो हाइट और रेडियस को फिक्स कर दिया तो स्लैंट हाइट तो फिक्स ही होगा। अगर हम स्लैंट हाइट को रेडियस को फिक्स कर दें तो इसका तीसरा साइड फिक्स होगा। इसका अगर हम सेमी वर्टिकल एंगल और हाइट को फिक्स कर दें तो भी चेंज नहीं होगा, है कि नहीं, कैसे चेंज होगा। सो दैट्स व्हाई हमको कोई भी दो चीज को लेट लेना पड़ेगा, कोई भी दो कांस्टेंट को। क्या दो कांस्टेंट को लेट लेंगे या एक कांस्टेंट को लेट लेंगे, डिपेंड करता है। पहले हम एक बार क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। हम आराम से ये वाले सबको करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान। अब यहाँ पे हम इंस्क्राइब कर रहे हैं इसके अंदर, कौन के अंदर, सिलेंडर। कौन तो कांस्टेंट है, इसके अंदर हम सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हैं। तो सिलेंडर जो इंस्क्राइब कर रहे हैं वो वैरी कर रहे हैं, मतलब सिलेंडर का क्या चीज वैरी करने से सिलेंडर वैरी करेगा, हाइट, रेडियस और हाइट। तो इसका हाइट को हम h यूनिट से डिनोट कर लेते हैं और रेडियस को r यूनिट से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमको रिलेट करना है कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ। नाउ दिस इज द ओनली यूनिक क्वेश्चन where we need to, in order to relate the constant and the variable, we require similarity property, because we are clearly able to see that we have got two triangles which are similar to each other. Which are those two triangles? Let us first of all draw from this vertex tip of the cone a right angle triangle and mark it as OA and B. OAB. And I can clearly see another right angle triangle, that is OCD. I hope it is clear, it is visible to everyone. This is C. Clear everyone? Is it visible? दिख रहा है तो C? नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। Okay, so this is O, this is A, this is B, this is C, and this is D. Same figure, same ही, थोड़ा मैंने बढ़ा दिया। ये यहां से लेके यहां तक जो है रेडियस है सिलेंडर का, R यूनिट, और यहां से लेके यहां तक सिलेंडर का हाइट है H यूनिट। ये वेरिएबल है। अब रिलेट करने के लिए यहां पे मुझे क्लियरली दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल है OCD, एक ट्रायंगल है OCD, ट्रायंगल OCD which is similar to triangle OAB. All right, now you know that these two triangles are similar. How they are similar, that you don't have to show, but yes, similar होना चाहिए तभी तुम लिखोगे, तुमको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम सिमिलैरिटी नहीं दिखाओगे तो तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे हमको पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, दैट इज OCD और OAB। बताओ तो कैसे सिमिलर है, कोई बता सकते हैं? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाई दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? So 90-90 और सेम एंगल O पे। यस, वी फाइंड दैट ये 90 है, ये 90 है दोनों ट्रायंगल का, और ये हो गया कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का, बड़ा वाला ट्रायंगल का ये कॉमन, ये एंगल, और इस छोटा वाला ट्रायंगल का भी ये एंगल, दोनों के क्या है, कॉमन एंगल। सो यू नो दैट अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल्स अगर इक्वल हो तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल इक्वल होगा। सो वी से नॉट एंगल एंगल एंगल, बट एंगल एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मतलब एक ही बात है, ट्रिपल एंगल या एंगल एंगल। डबल एंगल मतलब थर्ड एंगल हैज टू बी सेम। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वी नो दैट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दैट इज OC by OA, because I have written in similar के हिसाब से मैंने लिखा है OCD OAB। OC divided by OA is equal to CD divided by AB is equal to OD divided by OB. Now tell me everyone, यहां पे हमको, हम लोगों ने सिमिलैरिटी को यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे एक इक्वेशन तो निकाल दिया, ठीक है। अब बताओ मुझे तुम लोग कि यहाँ पे किस दो, आई मीन 1 2 3 A इक्वल टू B इक्वल टू C, हम लोग को तो एक इक्वेशन चाहिए ना
जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग रिलेट कर पाए। तो बताओ तो यहाँ पे रिलेट करने के लिए मुझे कौन से दो चीज को इक्वलाइज करना पड़ेगा, पहला को दूसरा से, पहला को तीसरा से, या सेकंड को थर्ड से? बताओ फर्स्ट एंड थर्ड। क्यों, बताओ तो ऐसे क्यों, क्या कारण है फर्स्ट एंड थर्ड को? सर क्योंकि हाइट और रेडियस। फर्स्ट एंड थर्ड को नहीं चेक करने का जरूरत है, बिकॉज हमको हाइट जो है h, s तो किसके अंदर आ रहा है बताओ तो? ca के अंदर आ रहा है। फर्स्ट एंड ca सेकंड। किसका पार्ट है? oa का पार्ट है। और अगर r देखो तो r किसके अंदर आ रहा है? ये किसके अंदर आ रहा है? ab के अंदर। od और ob कहीं भी यूज हो रहा है, देखो तो ob और od कहीं भी यूज हो रहा है? नहीं। मतलब तीसरा पार्ट को ये लेके कोई फायदा नहीं है। In order to relate constant and variable, this is sufficient. It means that OD और OB का कोई जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ये आता था पहले शुरुआत में, जो हम लोग के दिमाग में आ रहा था कि कांस्टेंट किसको ले, तो कांस्टेंट किसको लेंगे हम? कोन का हाइट को कांस्टेंट ले लेते हैं और रेडियस को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज स्लैंट हाइट का जरूरत नहीं है। सो लेट h1 यूनिट and r1 unit be the height and radius, with the height and radius, with a given height. Okay, I must write given height and given radius, and given radius of a cone. Also, we are inscribing in it a cylinder, so also h unit and r unit, and I'm denoting with capital H, in capital R. क्या होगा? इजी रहेगा, मतलब थोड़ा आइडेंटिफाई करने में आसान रहेगा। and small h and small r be the height and radius of a cylinder. जो इसके अंदर हम सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हैं उसका हाइट को h से और रेडियस को r से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्लियरली वी फाइंड दैट ट्रायंगल OCD is similar to triangle OAB. So if these two triangles are similar, we find that we have what? We have OC divided by OA is equals to CD divided by AB is equals to OD divided by OB, but we don't require the third part. This is sufficient, इतना काफी है। OC, what is the length of OC? Can you tell me? बताओ तो ये पूरा लेंथ अगर h है, कैपिटल H पूरा, h minus h। कैपिटल एच और ये माइनस पूरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है, तो बताओ तो OC कितना हो जाएगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। Capital H minus small h is the length of OC. What is OA? OA is what? Capital H. Capital H is a constant. CD क्या बताओ तो? CD is the radius of cylinder, जो कि R से डिनोट किया मैंने. And what is AB? AB is the radius of cone, जिसको मैंने कैपिटल R से डिनोट किया. इसको मार्क कर दो इक्वेशन को वन। तो याद करो मेरा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या? स्टेप वन में कांस्टेंट को और वेरिएबल को रिलेट करना। अब दूसरा बात ये है कि वापस मैं एक चीज समझा रहा हूं कि यहाँ पे मुझे ये तीसरा कांस्टेंट, मैंने हाइट और रेडियस को क्यों लेट लिया? बिकॉज तीसरा को लेने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? देखो बता रहा हूं क्यों। क्योंकि अगर मैं इसको इससे इक्वलाइज करूं तो CD के अंदर रेडियस से आएगा, OD के अंदर स्लैंट हाइट आएगा। मतलब ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर एक बार में कोन का दोनों कांस्टेंट और सिलेंडर का दोनों वेरिएबल आ जाना है। मतलब तुमको ओवरऑल ये देखना है कि 1 2 3 में कौन से दो चीज में H और R दोनों आ जा रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर नहीं आ रहे। समझ में आया तो बात? इसीलिए मैंने ये पहला और दूसरा को लिया, तीसरा को नहीं लिया। बिकॉज तीसरा को लेने से मुझे इसको इससे इक्वलाइज करते तो हम सिर्फ हाइट का और कांस्टेंट का रिलेशनशिप बनता, इसको इससे इक्वलाइज करते तो रेडियस का कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप बनता। लेकिन मुझे तो सबका रिलेशनशिप एक ही इक्वेशन में निकालना है ना, तो मैंने क्या किया? इसको इससे इक्वलाइज किया और इसके हिसाब से मैंने स्लैंट हाइट को लेट नहीं लिया। ओके, अब देखो सेकेंड पार्ट। Let C be the curved surface area of a cylinder. Now, what is curved surface area of a cylinder? It is 2 pi RH. दो वेरिएबल है, एक को रिप्लेस कर दूं, मैं R को रिप्लेस कर रहा हूं, स्मॉल r को। अगर मैं स्मॉल r को रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा R by H into ब्रैकेट के अंदर H माइनस स्मॉल h
यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? तो स्मॉल आर क्या होगा? आर बाई एच, ब्रैकेट के अंदर एच माइनस एच। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करने से पहले 2r बाई एच इंटू पाई कॉन्स्टेंट है, तो 2r बाई एच पाई इंटू एच स्मॉल एच, एच माइनस एच से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? तो c हो जाएगा। ध्यान देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो h कैंसिल हो जाएगा, सो यू गेट 2r पाई इंटू स्मॉल एच माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2r पाई बाई h इंटू स्मॉल एच स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया बात? मैंने क्या किया? 2r पाई बाई h, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने जब मल्टीप्लाई किया h h कैंसिल हो गया तो 2r पाई h बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो h इंटू h स्क्वायर हो गया, कांस्टेंट को पहले रखा। मतलब इससे क्या होगा? डिफरेंशिएशन के वक्त छूटेगा नहीं तो ऐसा एक h यहाँ पे हो एक h यहाँ पे हो, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, मतलब इस फॉर्म में रखा। अब इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम का स्टेप्स। You know what is the first step of maximum and minimum? Now my question is, I'll be differentiating C with respect to what? With respect to H or with respect to capital R? Tell me. Small h. बहुत लोग R बोला, R तो wrong है ना, R तो constant है, H भी constant है, capital H और capital R constant है, small h के respect में differentiate करना होगा। We have to differentiate C with respect to small h, equalize that with 0, get the value of x, second order derivative निकाल के कर देना, हो जाएगा। देखना ये एक बार कॉपी करो फटाफट। Now see, find dc by dh. You know why we are differentiating with respect to small h? Because it's a constant, 2 pi r by, sorry, it's a variable, sorry, h का derivative 1, 2 pi r by h, derivative of h square is 2h. So what is dc by dh? As there are many, alphabets here used, okay, to denote constant and the variable. So please make sure that you all be very alert while solving the question. नहीं तो क्या होगा? कोई ना कोई चीज मिस हो जाएगी। Equalize this with 0 now to determine h. So what is the value of h? Capital H by 2. The value of h is how much? Capital H by 2. 2. This is the critical point. Now different हो गया, अब second order निकालो। 2 pi r 0 minus 4 pi r by h, h का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे कुछ भी h बचा ही नहीं। This expression d square hc by dh square is a function independent of small h. It means that it is negative means it is less than 0. Therefore, c is maximum at h equals to h by 2. So we have proved the second part and completed the second part. Last part. Diameter of cylinder equals to radius of the base of the. So in order to prove this, what you have to do? Can you tell me? क्या करना पड़ेगा? How to prove diameter of cylinder means 2r. Radius of the base of the cone means capital R. How to prove this? सब्स्टिट्यूट करना इक्वेशन 1। मतलब स्मॉल h को रिप्लेस करो या कैपिटल h को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने तो बोला यूजुअली कि कांस्टेंट को रिप्लेस करना, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यू कैन आल्सो रिप्लेस स्मॉल h बिकॉज़ तुम स्मॉल h रिप्लेस करो या कैपिटल h, ओवरऑल कट जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट, पुटिंग h equals to h by 2 in equation number 1, we get, if you put the value of h, we are finding that we get half.
that is r equals to 2, capital R equals to 2 हो गया ना। r capital R मतलब radius of cone, so radius of cone is equals to the diameter of the cylinder, and so this way we have completed the 3 questions which was the objective of today's